Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 12, and the name of the chapter is friction. As we did before the chapter force, what type of forces are acting in our daily life, what is pressure, what is the effect of pressure on high altitudes or in the sea. So now today we are going to start our chapter friction, and the topics that we'll be covering is friction, what is the cause of friction, advantages and disadvantages of friction, how we can increase and reduce friction, and fluid friction. As we have always seen that a driver of a car or truck slowing down the vehicle at a traffic signal, ठीक है, by applying the brake. Now not only the vehicles, you can stop any object over the surface of another object. Finally, if you kick a ball, it finally stops after some time. When no external force is applied, it itself stops. That is the friction. Why do we slip when we step on a banana peel? Why is it difficult to walk on a smooth surface then and wet floor? हमेशा आपने नोट किया होगा स्मूथ सरफेस और वेट फ्लोर में ही हम स्लिप क्यों करते हैं. सो द ऑल आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग नाउ. द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ द फ्रिक्शन. व्हाट इज़ फ्रिक्शन? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ मोशन एक्सपीरियंस व्हेन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. जब दो सर्फेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, whether they are moving or they are in contact, the resistance of motion जो वो experience करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? friction. Whenever the surface of one body slides over that of the another, each exerts a force on the another. और वो force क्या करती हैं? oppose करती है motion of the body. This is called the frictional force. So frictional force कौन सी force होगी कि जब भी whenever the surface of one body slides over that of the another, it exerts a force on the other. वो अपोज करती है आपकी मोशन को of the body, and this opposing force is known as frictional force. अब there is one activity which shows that force of friction, it always opposes the motion of an object. You have seen there is a one box, heavy box. You have to push that heavy box. You try to move it from left to right for some distance. Repeat the activity pushing the box from the opposite direction, that is from right to left. Friction that always prevents movement until the force applied is more than frictional force. हमेशा यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है और फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो. अगर जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम है तो दैट बॉक्स विल नॉट बी एबल टू मूव. यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स देन द फ्रिक्शनल फोर्स, ओनली देन दिस बॉक्स विल मूव. तो दिस शोज दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. When you apply a small force on a box, it does not move. This is the force of friction which opposes the motion of the object, motion of the box. So when you apply sufficient force to overcome friction, then the box start moving. Here also the force of friction, it acts in the opposite direction in which the box tend to move. Friction always act in the opposite direction. When you apply force along right, the friction acts along left, ठीक है. और अगर आप लेफ़्ट से फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगी? अलॉन्ग दी राइट. दैट मीन्स इट इज़ दी अपोजिंग फोर्स. तो अबव एक्टिविटी जो अभी हमने पढ़ी है वो क्या बताती है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन. इट ऑलवेज स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. इट ऑलवेज टेंड टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. नाउ नेक्स्ट इज़ कॉज ऑफ फ्रिक्शन. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फ्रिक्शन जो है वो क्या है और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ठीक है. इट इज़ द अपोजिंग फोर्स. अब इसका कॉज क्या है? फ्रिक्शन होती कैसे है?
As you know that there are friction is caused by the irregularity between two surfaces in contact. जब भी दो surfaces जो हैं उनमें क्या आती है, irregularity आती है between two surfaces which are in contact with each other, that is known as friction. Now if you observe the surfaces of various objects through a magnifying glass, you will be observing a number of grooves and ridges like irregularities. इस तरह से irregularities present होएगी between the surface. और जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ये इरेगुलरिटीज़ क्या हो जाती हैं, आपस में इंटरलॉक हो जाती है. ठीक है, जब ये इंटरलॉक हो जाती हैं तो क्या होता है आपका, व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट वी अप्लाई फोर्स टू ओवरकम सच दैट इंटरलॉकिंग. ठीक है, सपोज़ ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इस तरह से है. ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसकी इरेगुलरिटी ऐसे हैं, ये आपस में क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है. और जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें इस इरेगुलरिटीज़ को ब्रेक करना पड़ता है, तभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा. ठीक है, सो दिस इज़ द इरेगुलरिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द फ्रिक्शन. So when we attempt to move an object, any object, we have to apply a force to overcome such interlocking. And when we apply sufficient force, the interlocking break and the body that begins to move. This is the smooth surface. They are not having any interlocking. ठीक है, तो ये क्या है आपका स्मूथ सरफेस. जहाँ पे इंटरलॉकिंग ग्रूव्स और रिजेस प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे क्या है आपका, उसको क्या कहेंगे हम, रफ surface. Now there is one activity which shows that frictional force depend on the nature of two surfaces in contact. In this we have taken a brick and tie it with a string around it and fix another end with the spring balance. What you will be observing, ये हमने एक स्मूथ surface लिया है, तो स्मूथ surface में brick जो है वो easily move कर जाएगी because there is no interlocking between the two surfaces. ठीक है, तो आप स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग नोट कर सकते हो. नाउ विल बी डूइंग सेम एक्टिविटी बाय कीपिंग द ब्रिक इन अ रफ सरफेस. अब रफ सरफेस है तो ऑब्वियस है यहाँ पे ग्रूव्स और रिजेस ज़्यादा होंगे और इरेगुलरिटी ज़्यादा होएगी, तो इट इज़ हार्ड टू मूव द ब्रिक ऑन अ रफ सरफेस. एंड व्हेन यू नोट द रीडिंग it will be more than that in the smooth surface. So this shows that the frictional force, it depends on the nature of two surfaces. This activity क्या शो करती है, that rough surface offer more friction than smooth surface. Now next is spring balance. Spring balance क्या होता है, it is a device that is used to measure the force. और ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, दैट ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर द एक्सटेंशन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. अब यहाँ पे आप देख सकते हो रफ सरफेस था, इरेगुलरिटीज़ हो गई है बिटवीन टू सर्फेसिज में, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगवानी पड़ेगी. ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी. ठीक है, सो आपका जो स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या मेजर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेटर, जितनी ग्रेटर फोर्स लगेगी उतनी आपकी एक्सटेंशन जो है स्प्रिंग बैलेंस की वो ज़्यादा होगी. इट हैव अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्प्रिंग प्रेजेंट होता है इसमें. ठीक है, एंड व्हेन द स्प्रिंग, जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो पॉइंटर जो है वो मार्क्ड स्केल में मूव्स ऑन अ मार्क्ड स्केल एंड रीडिंग ऑन द स्केल हमें क्या बताती है, अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन हाउ हार्ड द टू सर्फेसिस प्रेस टुगेदर. Now in this activity they have taken a brick, start pushing it on a floor with your hand. Now take another brick and place it on the first brick. Now try to push them. What will you notice, that you have to apply more force to push two bricks. All the surfaces area of contact remains the same. तो ये एक्टिविटी क्या प्रूव करती है, that friction becomes more when more pressure is applied. अब यहाँ पे आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया है, ज़्यादा वेट जो है यहाँ पे पहले एक था तो हमें इसको फोर्स अप्लाई की तो वो इजीली मूव कर गई, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो गया है तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और ज़्यादा ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगी. दिस शोज़ दैट फ्रिक्शन बिकम्स मोर व्हेन मोर प्रेशर इज़ अप्लाइड. नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. There are mainly three types of friction: static
friction, sliding friction and rolling friction. स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन है? इट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज़. कब तक एग्जिस्ट करती है? जब तक दे आर रिलेटिवली एट रेस्ट, जब तक दो बॉडीज़ रेस्ट में हैं. इवन दो एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग अपॉन देम, चाहे एक्सटर्नल फोर्स उसमें लग रही है. ठीक है. स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी होगी? इट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स. वो तब एग्जिस्ट करती है जब दो बॉडीज़ दे आर एट रेस्ट even though an external force is acting upon them. It is the opposing force. Sliding friction जो है opposing force है that comes into play when one body tends to move over the surface of another but actual movement has not started. इसका क्या मतलब है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन होगी? टेंड्स टू मूव, कि बॉडी जो है वो दो सर्फेसिस कांटेक्ट में आ गए हैं पर बॉडी मूव करनी शुरू हुई है पर अभी मूव नहीं की है. दैट इज़ इट टेंड्स टू मूव ओवर द सर्फेस बट एक्चुअल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है. सो स्टैटिक फ्रिक्शन इट मस्ट बी ओवरकम बिफोर एन ऑब्जेक्ट कैन बी सेट इन मोशन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज़ व्हेन दे स्लाइड ऑन वन अनदर. ठीक है. स्लाइड मीन्स सपोज़ आप क्या कर रहे हो, रैम्प में स्लाइड करके जा रहे हो, दैट इज़ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है with uniform speed, that is known as sliding friction. Next, rolling friction that exists between two surfaces when a body rolls over the surface of another. आप टायर्स आपके किसी भी लगेज में लगे हुए हैं, आप उसको रोल करते हुए लेके जा रहे हो, उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग जो है वो हमेशा फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी ईजी टू मूव अ हैवी बॉक्स व्हेन इट इज़ फिटेड विद व्हील्स. किसी भी चीज़ के नीचे व्हील लगे होंगे तो आप इजीली उसको मूव कर सकते हो. ठीक है. सो वी हैव, इफ़ देयर इज़ नो व्हील्स, विदाउट व्हील्स तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी. देयर इज़ वन एक्टिविटी, रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. दे हैव टेकन अ नोटबुक and 4 cylindrical pencils are kept of same size under the notebook. One hook is attached to that spring balance, you can say. Now keep the notebook on the table and try to pull with the spring balance. Now place the pencil on the table parallel to each other at equal distance. Now keep the notebook. तो आप क्या, ये आप एक्टिविटी घर में भी कर सकते हो अगर आप सिंपल नोटबुक को पुल करते हो स्प्रिंग बैलेंस से. ठीक है. तो उसका रीडिंग जो है वो ज़्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ेगी. लेकिन अगर आप उसके नीचे पेंसिल्स करके उसको रोल करते हो तो क्या है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी कम होगी. एंड दिस शोज़ दैट रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. Marking on the balance in the second case, that will be less, and this proves that rolling friction is less than sliding friction. Okay, thank you students.